नमस्कार दोस्तों, एफआईआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हर हफ्ते हम आपके समक्ष किसी न किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को लेकर आते हैं और आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। और अभी पिछले 2 सालों से कोविड के दौरान एमएसएमईज को बहुत सारे चैलेंजेस के दौर से गुजरना पड़ा। उसके ऊपर हमने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के ऊपर उनकी डिस्कशन अरेंज की, कई एपिसोड बनाए। तो आज का एपिसोड भी हमारा आप सबकी जो एमएसएमईज हैं उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे बीच मिस्टर राजकुमार जी हैं, जो कि एक कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं, हरियाणा बेस्ड, और ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह इनकी प्रेजेंस है। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज ये हमारे साथ जुड़े हैं। अपने कीमती वक्त को में से इन्होंने थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड टू ब्रिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म जी। थैंक यू। तो दोस्तों, राजकुमार जी सेटअप है हरियाणा में है और ये हरियाणा की एमएसएमईज की प्रॉब्लम से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। पिछले कई सालों से ये अपनी बिजनेस में स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़े हैं। तो आज हम इनसे इनकी जर्नी शेयर करेंगे और इनसे बात करेंगे। जो आप सब लोगों के हमारे पास क्वेश्चन आए हैं वो हम इनसे पूछेंगे और आज जवाब मिलेंगे। तो प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले आप अपनी एक पर्सनल आपकी जर्नी, जो आपकी चाहे स्ट्रगल्स थी और हर्डल्स से कैसे आप आगे बढ़े और जो भी चैलेंजेस आए आपकी प्रोफेशन में, उनको आपने कैसे ओवरकम करके आप आगे बढ़े। तो आप एक छोटी सी जर्नी हमारे साथ शेयर करें आपके बारे में। थैंक यू जी। माय नेम इज राजकुमार खंडेलवाल। आई बिलोंग टू ए बिजनेस फैमिली. It was a turning age in my life was say I was in 12th standard. My target was to become a chartered accountant. After clearing my 12th, there was a provision that we could appear in CA entrance exams, and that I appeared for. Luckily, I got 96% aggregate that time in CA entrance. But suddenly after that, my father had an attack. It was a neuro attack. So I had to change my ideas and started managing the business that my father was running. And after that, in the process of that business management, my duty was the scope that I had. I used to go visit so many industries and manufacturing units. I used to go there and see the manufacturing processes and started taking interest in them. Afterward, I decided about 8 years after, I decided that no, trading is not my cup of tea. I should start and go for an entrepreneurship and enter into manufacturing sectors. I started my industry in 1994. Then with a small area in Mayapuri, Delhi. Then I shifted to Gurgaon in 2001. When I started my factory, my manufacturing, by my experience of my trading business, I did some business with some traders and wholesalers in the market. Later on, I experienced that working with the traders, I will not be able to learn anything. The fire, the passion that I had in my mind, that will go away, because in market the people are asking for the cheap quality of product and at lesser cost, which is not I was targeting for. My vision was to fly in a open sky. So I started using my technology and equipments, my machine and capacity, full capacity only for users. My major customers were exporters of different sectors like builders, hardware, electronics, electrical, furniture fittings and all. Later on, I added on new machines, new technology, inducted new new things, new systems in my company, and I got associated with good companies like Schneider Electric, Philips,
Motherson, these type of companies, OEMs level. I always had an idea, learn whatever comes your way. And the fire has to be always burning, always. If you are feeling satisfied that what you are getting is okay, no, that will make you slow. So we have to be keep, you have to keep the fire on always. That was the idea, and I kept on inducing machines, new machines, and I know every year we are adding 2 or 3 new machines in my factory, and the capacities are going on. So in my journey, I have developed more than 200,000 type of components for different customers. 200,000 type of components, and today I have a very good experience and idea, and I can challenge whatever type of product I get, I will be able to get it through. So this is the journey. I started at my export in the 1997 only, and till then I have exported more than 20 containers in my early 5 years. Since I mean that time there was a very good initiative by government that whole income coming from export sales was exempted from tax. That was a provision of ATHSC. At that time, it was really working on export field. But sooner, after some time, I realized that government has eliminated all the benefits and every income is taxable. So that then I started focusing on domestic market, and I found that India is really a very big market, and we can achieve similar and even better targets here in India also. I expanded my market through Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, and even by the side I was exhibiting my products in international exhibitions, and therefore I was getting new customers and new foreign buyers as well. I have exported to my products to Sri Lanka, USA, Poland, Ireland, Kuwait. People are going China to buy the things. I am the person who is exporting my product to China. So this is the thing. सर, जिस दौर में ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट पे मेड इन चाइना लिखा होता है, ऐसे दौर में चाइना को आपने सप्लाई मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दिया जी, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मेरे क्या ये नेशनल प्राउड की बात भी है। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। I feel so. जी नहीं सर, डेफिनेटली। और हमारे लिए भी ऑनर की बात है, हम हमारे बीच में आप बैठे हैं और हम बात कर पा रहे हैं आपसे। तो सर इसके साथ ही आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो क्योंकि आप हरियाणा बेस्ड हैं, आपने दिल्ली में भी बिजनेस किया, एक्सपीरियंस किया, फिर आप हरियाणा शिफ्ट हो गए गुड़गांव में। तो एज अ एमएसएमई क्या क्या चैलेंजेस आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से आपके मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज के लिए, और उसका कैसे सॉल्यूशन की बात करें तो एक एक करके हम आज सारे चैलेंजेस हर लेवल पे और हर फील्ड के, चाहे वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट है, चाहे वो प्रोडक्शन यूनिट है, मतलब जो भी आप हमसे शेयर करेंगे। हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे ऑडियंस की तरफ से, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत एक जेनरिक तरीके से करना चाहूंगा कि सर जो एमएसएमई प्रॉब्लम्स, सबसे पहले क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो एक आम आदमी, एक एमएसएमई फेस करता है जब वो एक शुरुआत करने जाता है अपना बिजनेस, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स में से गुजरना पड़ता है और उसका क्या सॉल्यूशन है? यस, थैंक यू। आई बिलीव दैट काउंटिंग कितनी भी लंबी क्यों ना, स्टार्ट तो 1 से ही होती है ना जी। जब तक 1 नहीं आएगा 2, 3, 4, 5 यू कैन नॉट गेट इट फर्दर। जी जी। जब भी कोई एमएसएमई या एंटरप्रेन्योर जब स्टार्ट करता है कुछ वर्क, it starts with the little capacity, little space, little people, and putting more and more efforts from himself. तो चीजें आगे बढ़ती हैं धीरे धीरे। जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है स्टार्टिंग में, मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन,
लेबर, आपका स्पेस कंस्ट्रेंट, कंप्लायंसेस, ये इतने सारे हर्डल्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं which are integrated to each other. We have to manage all the things. And in MSME, in starting, everyone has to do all these activities by himself. This is the basic thing. In starting, you cannot hire 20 people or 50 people in starting. You start with the 5 people, 10 people, and then keep on adding the things. New people, new staff. देखिए, मैं जो समझता हूँ कि किसी भी स्टेट का 80% एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। जिन स्टेट्स के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, उन स्टेट्स की आप ग्रोथ देख लीजिए, उनकी हालात देख लीजिए क्या है। आप गुजरात को देख लीजिए, उड़ीसा को देख लीजिए, पंजाब को देख लीजिए, तो झारखंड को देख लीजिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक लोगों को एम्प्लॉयमेंट का स्कोप नहीं मिलेगा, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, तब तक लोग इस सेक्टर में आने से कतराएंगे। एक टाइम था तो लोग कहते थे कि फैक्ट्री लगाना मतलब 99 के चक्कर में बैठ जाना, 100 कभी आएगा नहीं, 90 ना हो जाए इसके लिए वो भागदौड़ करता रहेगा। बट चीजें अब धीरे धीरे सुधर रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने आप में इतना पॉलिश्ड होता जा रहा है, इतना सिस्टमेटिक होता जा रहा है कि लोग इस प्रोफेशन को एंजॉय करने लगे हैं, जो मेरा मानना है। अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट भी अगर इस लेवल पे अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, तो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकती हैं। जो रियलिटी में है ना, वो रियलिटी में वो नजर नहीं आ पाता जो हमें एक्चुअल में इकोसिस्टम चाहिए काम करने के लिए। जैसे मैं बात करूं, किसी भी टाउन की बात कर लीजिए, किसी भी सिटी की बात कर लीजिए, कि वहां पे आप देखते हैं कि नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में छोटी यूनिट लगा के लोग बैठे हुए हैं, बैठना पड़ता है। रीजन, ऐसे एरिया डेवलप क्यों होते हैं? क्या जब टाउन प्लानिंग होती है, ऐसे एरियाज को आप कंसीडर करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि ऐसे भी लोग आएंगे, इस तरह की इंडस्ट्रीज एरियाज बन जाएंगे? बनते हैं। क्यों बनते हैं? बिकॉज इंडस्ट्रियल लैंड्स इजीली अवेलेबल नहीं होती है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने 3 बार HSIIDC में इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए अप्लाई किया। 15 दिन पहले पता लगता है कि आपके एप्लीकेशन जानी है, 15 दिन में आप अरेंजमेंट करिए, जमा करा दीजिए। उसके बाद जब इंटरव्यू होते हैं, तो इंटरव्यू में एक फॉर्मेलिटी होती है, कोई क्राइटेरिया नहीं होता। मैंने देखा है, मैं वहां जब इंटरव्यू में गया था तो मैंने देखा कि ऐसे ऐसे लोग इंडस्ट्रियल प्लॉट की एप्लीकेशन लेके बैठे हुए थे, वजह एप्लीकेशन के इंटरव्यू के आए थे, जिनको फैक्ट्री का ऐसा नहीं पता। जब इंटरव्यू ने उनसे पूछा भी आप किस चीज का प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो, नहीं मुझे याद नहीं है, आप फॉर्म में देख लीजिए क्या लिखा है, बस वही लगा देंगे हम तो। एंड लेटर आई केम टू नो that particular person got 8 plots in IMT Manesar in a row. लोगों को एक नहीं मिलता, वहां उसको 8 मिले। Why? Just because HSIDC और maybe other state industrial development corporations also might be working like a property dealer. तो वहां पे जो बैठे हुए हैं लोकल्स, वो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को दे आर बाइंग लाइक ए स्टॉक। उनके लिए तो प्रोडक्ट है, उनके लिए कोई इंडस्ट्रियल लैंड नहीं है, वो तो प्रोडक्ट है उनके लिए। उन्होंने लेना है, इन्वेस्ट करना है या बिल्डिंग बना के लीज आउट करना है। आप सोचिए 8 प्लॉट एक ही बंदे को आपने अलॉट किए, क्या शो करता है? डेफिनेटली ये हमारा मॉरल डाउन करता है कि यस, उसने कुछ क्या किया होगा जो उसको 8 अलॉट हो गए एक साथ, वो भी एक रो में। इट्स ए बिग थिंग। उसके बाद क्या होता है कि आप देखिए, जब आप इंडस्ट्रियल प्लॉट की एप्लीकेशन निकालते हैं, HSIDC को मालूम है कि 45,000, 50,000, 1 लाख एप्लीकेशन आती है। जब नेक्स्ट अलॉटमेंट आती है तो 55 प्लॉट की आती है, वो भी साल में एक बार आती है नॉर्मली। तो क्या एक साल में 55 प्लॉट की डेवलपमेंट हो सकती है? क्या एक बार में 30,000, 40,000 प्लॉट की अलॉटमेंट नहीं हो सकती, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एलिजिबिलिटी मिल सके? जब लोगों को इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट नहीं मिलेंगे, उन्हें काम करना है, तो कहां जाएंगे? वो नेचुरली नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में ढूंढेंगे।
उनको मजबूर होकर वहां जाना पड़ेगा। दो नुकसान है, एक तो आपका इंडस्ट्री नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रही है, दूसरा आपकी टाउन प्लानिंग फेल हो रही है, सिटी की ब्यूटी खराब हो रही है, बट देयर इज नो सॉल्यूशन। हरियाणा के पास में इतनी लैंड है, प्लेंटी ऑफ लैंड, जो कि अनयूटिलाइज पड़ी हुई है, सालों से पड़ी हुई है, नाम की खेती होती है, कुछ नहीं होता, पड़ी है। क्या उस लैंड को गवर्नमेंट चाहे तो क्या अच्छे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में नहीं डिवाइड कर सकती? जगह जगह खूब अच्छी सिटीज बन सकती है। आप पंजाब हाईवे चले आइए, हर 10 किलोमीटर के बाद, 5 किलोमीटर के बाद कोई टाउन दिखता है, और वो पूरा डेवलप्ड है, full of industries, full of employment, full of people, everybody is happy working there. यहाँ पे चलिए तो आपको 30-30, 40-40 किलोमीटर तक ऐसा लगेगा जैसे वीरान पड़ा हुआ है सब। इतनी लैंड होने के बाद भी हमारा जो फोकस है वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ है। दिल्ली एनसीआर के आसपास इंडस्ट्री लगा देंगे, यहाँ प्लॉट बिक जाएंगे, प्लॉट तो बिक जाएंगे, लैंड महंगी बिकेगी, HSIDC को ज्यादा ज्यादा पैसा मिल जाएगा, लेकिन उन चीजों से वो नहीं हो पा रहा जो एक्चुअल में इंडस्ट्रियल लैंड का पर्पज है। सर आप माइंड ना करें, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी। जी जी। जब आप ये बात बोलते हैं तो मैं चाहूंगी कि आप एक सॉल्यूशन क्या आप देना चाहेंगे? मैं बताता हूँ। यस, आई हैव द सॉल्यूशन। मेरा सजेशन ये है कि HSIDC इंस्टेड ऑफ कटिंग ऑफ द प्लॉट्स, प्लॉटिंग करके देने की बजाय कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाए कि आप रेडीमेड मेडअप फैक्ट्रीज बना करके दें, और वो इस तरह से इतनी बड़े एरिया में डेवलप कर दें जिसमें जरूरी नहीं कि बड़े प्लॉट्स हों, छोटे भी हों, उससे छोटे भी हों। हर एंटरप्रेन्योर 2000 गज का प्लॉट नहीं ले सकता, 2000 मीटर का प्लॉट नहीं ले सकता, वो छोटा ले सकता है। एटलीस्ट वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगा, नॉन कन्फर्मिंग से उठ करके। तो अब उसके पास कैपिटल कम है, अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा लगा देता है पूरा, तो उसकी कैपिटल खत्म हो जाती है, उसको काम करने की दिक्कत आती है, वो काम कैसे करेगा? अदरवाइज वो किसी बैंक के पास या NBFC के पास में वो गिरवी हो जाएगा। इससे बेटर ये है कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट चार्जेस समझ लीजिए, लैंड की प्राइस समझ लीजिए, इस तरह से डिजाइन करे कि उस लैंड की वैल्यू जो वो एक्सपेक्ट कर रही है उसे मिले, कुछ इंटरेस्ट वगैरह जो भी उसको ऐड करना है कर ले, करके 20 साल के पीरियड के ऊपर उसको डिवाइड कर दे, और उस फैक्ट्री को लीज पे ऑन द स्पॉट अलॉट कर दे, प्लग एंड प्ले फॉर्म में। आप आइए, मशीनें लाइए, सेटअप कीजिए और रन कर दीजिए फैक्ट्री। इस तरह से करने से क्या होगा कि आपकी इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है पूरी यूनिफॉर्म नजर आएगी, सारी की सारी फैक्ट्रीज कंप्लायंट होंगी, जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो ज्यादा सुंदर लगेंगे, देखने में लगेगा कितने बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, चाहे वो अंदर छोटे छोटे शेड्स हैं, अंदर छोटे फैक्ट्री, लेकिन बाहर से विजुअलाइज करने में तो अच्छा लगेगा। सेकेंडली, फायर एनओसी आराम से मिल जाएगा, CTO आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है, जो नॉन कन्फर्म एरिया में जो लोग काम करने को मजबूर थे, वो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में पहुंच जाएंगे, विच इज मोर प्रेजेंटेबल। अब हमारा काम यहाँ पे मोर प्रेजेंटेबल सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, हमारा पर्पज है कि हम ग्लोबल बायर्स को कैसे लेके आए। ग्लोबल बायर्स तभी आकर के अट्रैक्ट होता है जब उसको दिखता है कि द पर्सन ही हैज द कैपेसिटी एंड ही इज वर्किंग इन ए प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड एरिया। वो चीजें नॉन कन्फर्म एरिया में नहीं हो पाती। आप चाहे कितनी बढ़िया CNC मशीनें लगा लीजिए, PMC लगा लीजिए, अच्छे से अच्छे मशीन लगाइए, लेकिन आप नॉन कन्फर्म बैठे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ये चीजें गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि लोगों को साथ लेके चले, इंडस्ट्रियलिस्ट को साथ लेके चले, तभी पूरे स्टेट का विकास होगा। हाँ जी मिस्टर खंडेलवाल, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि हरियाणा में ग्लोबल मार्केट्स का क्या स्कोप है? हरियाणा में जो आप देख रहे हैं, मैं गुड़गांव बेस्ड हूँ, और गुड़गांव इज एन ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हब, एंड ऑटोमोटिव इज ए प्रोडक्ट विच इज सोल्ड ऑल ओवर ग्लोब। कहीं भी आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। मैं फास्टनर्स मैन्युफैक्चरर हूं, तो फास्टनर्स का मैं देखता हूं कि पूरे ग्लोब में $460 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है,
and we are not getting even 9% of that. It's a big difference. तो प्रोडक्ट का स्कोप बहुत है, काम को करने वाला चाहिए, काम बहुत होता है। ऐसा नहीं है काम अवेलेबल नहीं है, काम को पकड़ना पड़ता है और अवेलेबिलिटी बहुत है। अगर सबके साथ ये इस तरह की फैसिलिटी हो और लोगों को फैसिलिटी मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ी सी, लोग तो मेहनत करने को तैयार है, लेकिन उनको प्रॉपरली आप उस मैन पावर को, एंटरप्रेन्योर पावर को आप यूज कैसे करना चाहते हैं, दिस इज द आइडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो बात कर रहा था, जैसे HSIDC का एग्जाम्पल दिया मैंने, सिर्फ एग्जाम्पल है, मैं कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। जिस तरह से प्रॉपर्टी डीलर्स इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को स्टॉक की तरह खरीद लेते हैं, उसके अंदर कुछ कंडीशंस होनी चाहिए अलॉटमेंट के ऊपर, कि 2 साल के अंदर बिल्डिंग बनानी है, 3 साल के अंदर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, 5 साल तक बेच नहीं सकते, ना लीज पे दे सकते हैं। अगर लीज पे देना है तो आप HSIDC को वापस कीजिए, HSIDC अपने आप देगी जिसको देना है, सरेंडर कर दीजिए, आप बेच नहीं सकते उसको ऐसे। ये कंडीशन होनी जरूरी है। जब तक ये कंडीशंस नहीं आएंगी, जिस तरह के एनवायरनमेंट में इंटरव्यूज होते हैं, जिस तरह से अलॉटमेंट होती है, वो इस तरह चलती रहेंगी और लोग इधर उधर अपनी सेटअप्स करने को मजबूर होंगे। 10 साल, मैं कहता हूं सिर्फ 10 साल इंडस्ट्रीज को दे दिए जाए, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अच्छी से अच्छी मशीनें लेके आइए, जहां से भी ला सकते हैं लाइए और लगाइए, लेकिन अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड क्लास बनाइए। 10 साल का अगर इंपोर्ट ड्यूटी का अगर लॉस गवर्नमेंट बेयर कर ले, मैं समझता हूं 10 साल के बाद गवर्नमेंट को जो पे आउट मिलेगा, दैट विल बी 10 टाइम्स नहीं बल्कि 100 टाइम्स मिलेगा। हमारे यहाँ की मशीन्स, हमारे यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स जो बनाते हैं मशीन, सस्ता और कमर्शियल करने के चक्कर में हम प्रोडक्टिविटी को नहीं देख पाते। यहाँ पे वो मशीन, मैं अपनी लाइन की बात करूँ, फास्टनर्स की, अगर फास्टनर्स की मशीन, द बेस्ट मशीन्स आर इन यूरोप, ताइवान एंड चाइना। अगर मैं उन्हीं टाइप की मशीनों को मैं लुधियाना बेस्ड या चंडीगढ़ बेस्ड या पंजाब से लेके आता हूँ, द प्रोडक्टिविटी इज हार्डली 15%, और उसमें भी वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी जो मुझे वहां की बेसिक मशीनें मिल जाएंगी। तो मैं क्यों ना लेके आना चाहूंगा बाहर से अच्छी मशीनें। अगर मुझे कंपटीशन करना है चाइना के साथ, अगर मुझे कंपटीशन करना है ताइवान के साथ, तलवार की लड़ाई तलवार से लड़ी जा सकती है, तलवार की लड़ाई लाठी लेकर के नहीं लड़ सकते हम। हमारे पास भी उतनी ही टाइप के, उतनी ही एडवांस मशीनें होनी जरूरी है, तभी हम कंपटीशन में आ पाएंगे। जितना उनकी मशीन पूरे दिन में प्रोड्यूस कर रही है, हम उसी मेटल को 1 हफ्ते में प्रोड्यूस कर रहे हैं सपोज, तो हम कैसे कंपटीशन करेंगे उससे? हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हमेशा आई रहेगी। ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ा डिफरेंस देखिए, हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे प्लांट से बम्बई या कांडला तक का हमारा एक सर्टेन फेयर लगता है, फ्रेट लगता है, इनलैंड हॉल जो कार्टेज लगती है हमारी। आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए फ्रेट माफ है, आपको रिइंबर्समेंट हो जाएगा। मैं कर रहा हूं तो मुझे नहीं होगा। तो एक्सपोर्ट है, द ट्रांजैक्शन इज डॉक्यूमेंटेड, इट कैन बी क्रॉस चेक एवरीवेयर। ये ऐसा क्यों है कि एक कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है उसके लिए फ्रेट रिइंबर्समेंट है, दूसरी कर रही है तो उसके लिए नहीं हो, और होगा तो इतना कम होगा, इसे कोई मीनिंग ही नहीं है। एक्सपोर्ट आप भी कर रहे हैं तो इंडिया का नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, फॉरेन मनी लेके आ रहे हैं, मैं भी वही लेके आ रहा हूं। अभी आज ही की बात है, मैं किसी एक्सपोर्ट डील के पे काम कर रहा हूं, दैट इज अराउंड 400 कंटेनर्स का डील है, मोर देन 400 में भी। जब उसमें मैंने रीइंबर्समेंट का पता किया तो मालूम पड़ा कि 1% ऑफ एफओपी और 5 लाख विच एवर इज हायर। आज एक कंटेनर दिल्ली से बॉम्बे तक 70,000 में पहुंचता है, 70 से 80,000 रुपए के बीच में पहुंच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर साल में 400 कंटेनर की प्लानिंग कर रहा हूं, तो मेरे सिर्फ 5 कंटेनर 6 कंटेनर की फ्रेट में जो मार्क मिलेगा, बाकी सारा मेरी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। हरियाणा के मुकाबले अगर मेरा प्लांट अगर
महाराष्ट्र में होता या गुजरात में होता, I could save a lot in freight itself. 72,000 रुपए एक कंटेनर का फ्रेट, मैं एक कस्टमर को ऑप्ट नहीं कर पा रहा हूं जस्ट बिकॉज दीज बेसिक थिंग्स कि ये कैसे मैं ब्रिज करूं इस गैप को। मैं रॉ मटेरियल को थोड़ा महंगा ले लूंगा, चलो कोई बात नहीं, अपने प्रॉफिट को कट डाउन कर लूंगा, लेकिन जो आउटसोर्स्ड कॉस्ट है वो तो मुझे पे करनी पड़ेगी ना। तो बिग डिफरेंस। ईओयू यूनिट अगर एक्सपोर्ट कर रही है तो उसके लिए वो फ्रेट माफ है, पूरा का पूरा रिम्बर्स हो जाएगा। आउटसाइड ईओयू कोई भी यूनिट जो डोमेस्टिक बिजनेस भी करती है साथ में, अगर वो करती है तो उसके लिए माफ नहीं है। वाई इज दिस रिस्क के पीछे क्या मीनिंग है इसका? छोटी छोटी बातें हैं, इनको ठीक करने की जरूरत है। आपने काफी वैलिड पॉइंट बोला। इन्हीं चैलेंजेस के बीच में आई एम गोना आस्क यू अनदर क्वेश्चन अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज। हरियाणा गवर्नमेंट का एक पीछे एक रूल भी आया था कि 75% हायरिंग फ्रॉम द हरियाणा स्टेट इटसेल्फ। उसके बारे में क्या चैलेंजेस हैं आज की तारीख में एमएसएमईज जो फेस कर रहे हैं? हम आज की तारीख में जो चैलेंजेस सबसे बड़ा नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि रूलिंग ऐसी टाइट होती जा रही है और इतनी स्ट्रिंजेंट और इतनी पेनलाइजिंग रूलिंग्स है, जैसे हम कोई चाइल्ड लेबर को हायर कर रहे हैं क्या। अगर हमें हरियाणा डोमिसाइल का वर्कर नहीं मिलता है उस स्किल का जो हमें चाहिए, तो क्या करना चाहिए? देयर आर टू ऑप्शंस, आइदर यू क्लोज योर यूनिट और यू शिफ्ट टू अनदर स्टेट। हरियाणा का जो मैं समझता हूँ, हरियाणा इज ए रिच स्टेट। यहाँ के लोगों को दे हैव वेरी गुड सोर्सेस, अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छा पैसा है, जमीन का पैसा बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है, मैं समझता हूँ वेल ऑफ है। क्या वो रूट लेवल पे काम करना चाहेंगे किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट में? नहीं करेंगे, उन्हें जरूरत ही नहीं है। आप लगा के रखिए, मैं लगा के रखता हूँ 2 महीने तक बोर्ड, 2 आदमी नहीं आएंगे हरियाणा के पूछने के लिए जॉब के लिए। तो हम क्या करें? या तो हम एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, दे नहीं सकते लोगों को। अगर हमें काम करना है तो हमें फैक्ट्री यहाँ शिफ्ट करनी पड़ी, हरियाणा छोड़ दी। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, एंटरप्रेन्योर के ऊपर फाइन है, उसको एफआईआर है, वो इंडस्ट्री चलाए, काम करे या ना करे। दिस इज माय क्वेश्चन। तो अभी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है अनस्किल्ड लेबर की और इवन स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मिलती नहीं है। स्किल के ऊपर जब तक काम नहीं होगा, किसी भी वर्क स्टूडेंट को आप तैयार कीजिए, किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करने के लिए फुल एक्सपर्ट बना के भेजिए। आज इंडस्ट्री की डिमांड है क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज द चैलेंज आई एम फेसिंग। तो स्किल के ऊपर काम करने की जरूरत है, इंडस्ट्रियल की लोकेशन के ऊपर काम करने की जरूरत है, इंडस्ट्रियल की पावर की सप्लाई कंटिन्यूस चाहिए। प्रोडक्शन कैसे पूरी होगी, ऑर्डर्स कैसे मीट होंगे, एक्सपोर्ट्स कैसे होंगी, बिग चैलेंजेस। हमने ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम्स की बात की। एक इसके बाद का जो मेजर चैलेंज आता है सर, वो आता है पॉल्यूशन को लेकर। जी, क्योंकि कहीं भी कोई जिस जहां मर्जी कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले लें, पॉल्यूशन एक मेजर कंसर्न है। और उससे भी बड़ा कंसर्न है उसके कॉम्प्लायंसेस को लेकर, उसकी गवर्नमेंट लाइसेंसेस को लेकर। तो उसके बारे में सर आप बताएं कि उसमें वो चैलेंजेस का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? जी, मैं बताता हूँ कि कुछ पोल्यूशन के प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप कहते हैं कि इसमें तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बहुत पोल्यूशन होता है, नो डाउट। हरियाणा में 2 जगह पर, गुड़गांव में भी और फरीदाबाद में भी, सीईटीपी जोन बना दिए गए कि जितने भी प्लेटिंग यूनिट्स हैं वो वहां पे अपनी एक्टिविटी करेगी। हरियाणा की बात करूं, सेक्टर 37 जो डेवलप किया गया, एक 3 एकड़ 4 एकड़ का प्लॉट है, उसके अंदर 300 लोग 200 लोगों को अलाउड, 200 प्लॉट काट दिए। नहीं भी काटा तो एक एक प्लॉट में 3-3 इलेक्ट्रोप्लेटर बैठे हुए हैं एक एक फ्लोर पे। छोटे छोटे 50-50 गज के प्लॉट है। आप उसमें कितना सिस्टम एस्टेब्लिश कर लेंगे? ऑटोमेटिक प्लांट लगाना हो तो कम से कम 150 फुट लंबी लाइन लगती है, इतना तो प्लॉट की लेंथ ही नहीं है। दे आर फोर्स टू डू ऑन कन्वेंशनल मेथड which is not approved in the sense
OEM लेवल पे अप्रूव नहीं हो सकता, इंटरनेशनल बायर के लेवल पे अप्रूव नहीं हो सकता। चीजें कैसे होंगी? सेकेंडली, जो पोल्यूशन उनको कह दिया कि आपको कोई CTP लगाने की जरूरत नहीं, बट लेकिन फीस आपको पूरी देनी है CTP मेंटेनेंस के लिए, जबकि मैंने देखा है कि CTP चलता ही नहीं है। अब CTP को रन करना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी होगी ना। आपको जरूरत है, ये देखिए कि आप जो आज प्लानिंग कर रहे हैं 10 साल के बाद क्या चाहिए हमें, उसके हिसाब से प्लानिंग करें। ये नहीं कि आज से 20 साल पहले क्या होना चाहिए था उसके हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं। दिस इज द रीजन हम लोग आगे, हमारा विजन बहुत शॉर्ट साइटेड है। क्या जरूरत है? कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए इनहेरेंट प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट इज ए इनहेरेंट प्रोसेस, इट हैज टू बी देयर, उसके बगैर वो बिकता ही नहीं है। तो उस टाइप के एनवायरमेंट के इको सिस्टम की जरूरत है ना, या तो अपने यहां लगाएगा या बाहर से कराएगा। तो कहीं ना कहीं तो बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। व्हीकल पोल्यूशन की बात करता हूं मैं। सपोज आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लीजिए, आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा, जल्दी से नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जिस जिस पेट्रोल पंप के पास एक पर्टिकुलर एरिया है, सपोज 500 गज का प्लॉट है उसका पेट्रोल पंप का, उसको 500 गज में कम से कम 10 गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन लगाने कंपलसरी हो, चाहे वो डीजल डिस्पेंसिंग कम कर दे। कुछ इस तरह की रोनिंग लेके आइए, कंपल्शन डालिए पेट्रोल पंप के ऊपर कि आपको चार्जिंग स्टेशन लगाने हैं। जितनी पार्किंग्स हैं जो अलॉट की गई हैं उनको कंपलसरी कर दी जाए कि आपको यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन इतनी गाड़ियों के लिए आपको लगाने पड़ेंगे। जब लोगों को चार्जिंग मिलेगी तो आराम से लोग लेंगे। कुछ चीजें गवर्नमेंट को भी तो करनी पड़ेगी लोगों को तैयार करने के लिए कि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे आइए। आज मैं एक मीटिंग में था मॉर्निंग में, मुझे पता लगा और उन्होंने एस्टिमेट दिया, इट वाज रियली हॉरिबल। अकेले हरियाणा की अगर बात करता हूं मैं, हरियाणा में इतने जनरेटर्स हैं फैक्ट्रीज में लगे हुए हैं, अगर उनकी टोटल वैल्यू को समाप्त कर दिया है तो उससे कम में तो हरियाणा अपना न्यूक्लियर प्लांट लगा सकती थी। जी। सोचने वाली बात है। उससे आधी कीमत में न्यूक्लियर प्लांट लग जाते, अपना पावर जनरेशन इतना स्ट्रांग हो जाता। जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज को बात करो, नहीं हमारे यहाँ तो पावर सरप्लस है, अरे सरप्लस है तो आती क्यों नहीं? क्यों पावर कट्स है? लोग मजबूर है जनरेटर चलाने के लिए, लेकिन जनरेटर नहीं चला सकते। चलिए ठीक है, अरे पावर तो दे दीजिए। जी तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे एड्रेस करने की जरूरत है, प्रॉपर एड्रेस नहीं हो पा रहा है। तो प्रॉपर एड्रेस के साथ क्या इम्प्लीमेंटेशन क्या करें। पूरे साल में सिर्फ 50 इंडस्ट्रियल प्लॉट ही डेवलप किए जा सकते हैं? सिर्फ 100 प्लॉट ही बनाए जा सकते हैं? इससे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकती? एंटरप्रेन्योर या तो फैक्ट्री लगा ले, जमीन ले ले, बिल्डिंग बना ले, या मशीन लगा ले, या वर्किंग कैपिटल बना ले। जबकि होना ये चाहिए कि सिस्टम गवर्नमेंट ऐसा बना के दे कि उसका काम सिर्फ फोकस करना है उसको अपनी वर्किंग कैपिटल के ऊपर। प्लांट एंड मशीनरी तक की सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से किसी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से मिल जाए, उसे काम करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए तो अपना कर लेगा। कैपिटल को इसके तैयार की, चलो भाई 3 करोड़ रुपए मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मालूम पड़ा 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए का तो प्लॉट ही आ गया। कब वो बिल्डिंग बनाएगा, कब वो मशीनें लाएगा, कब रॉ मटेरियल लाएगा, कब वर्किंग कैपिटल बनाएगा, कब कस्टमर मार्केटिंग एक्सपेंशन सेल्स प्रमोशन कब करेगा? मालूम पड़ा 10 साल 12 साल 15 साल इसी में निकल गए। 15 साल के बाद वो काम करके रहेगा कुछ भी नहीं, वो तो वैसे ही टूट लिया। नहीं सर, आपने जो बोला वैलिड 25 बोला। साल गुड़गांव में मुझे स्ट्रगल करते हुए, परेशान होते हुए हो गए। मुझे पता है स्कोप है, कर सकता हूं, बट चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सर, जो आपने बात बोली इकोसिस्टम की, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक इकोसिस्टम नहीं मिलेगा इंडस्ट्री को ग्रो करने का, आपको बिट्स एंड पीसेस में आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, गांव में जाके, और आई थिंक दैट दीज आर वेरी वेरी वैलिड पॉइंट्स जो आज आपने स्टेट करे हैं, एंड दीज आर द रियल स्ट्रगल्स जो आज का हमारा एमएसएमई फेस कर रहा है। रूल्स में दे हैव टू बी एमएसएमई सेंट्रिक, एग्जैक्टली। ग्रोथ तभी हो पाएगी।
तभी हो पाएगी। मैंने बताया ना 80% एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। जी आप इंडस्ट्री को 10 साल का एक हनीमून पीरियड दे के देखिए ना, इंडस्ट्री कहाँ पहुंचती है, कितने लोग इंडस्ट्री में आना चाहेंगे। आज लोग कहते हैं यार फैक्ट्री नहीं लगानी, नौकरी कर ले किसी कंपनी में, कहीं बाहर चला जा, आईटी सेक्टर में चले जाओ, फैक्ट्री में नहीं बैठना, फैक्ट्री बेकार लाइन है। क्यों? स्ट्रगल, ऑलवेज स्ट्रगल। आज मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन बदल गई है। मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन हो गई है मैन्युफैक्चरर्स। जी पूरी बॉडी में फ्रैक्चर ही फ्रैक्चर है। आप एक पेन को हील करिए, दूसरा पेन तैयार है। कंफर्ट तो आ ही नहीं रहा। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये मैं समझता हूँ सभी एमएसएमईज का पेन पॉइंट सेम है इन प्रॉब्लम्स को लेकर। लेकिन अभी जैसे हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल मार्केट्स की एंट्री की बात की, जो ग्लोबल कंपनीज आ रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया में अपने सेटअप्स बना रही हैं, आपको लगता है कि क्या वो बेनिफिशियल रहेगा एमएसएमईज के लिए, या वो कितना इफेक्टिव रहेगा? क्योंकि जब इंटरनेशनल कंपनीज आएंगी तो वो कुछ सिस्टम नेचुरली लेकर आएंगी, या कुछ इनोवेटिव कुछ टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स होंगे, या काम करने के तरीकों में बदलाव आएगा। क्या आपको लगता है कि ये कुछ हेल्पफुल होगा? क्या एक ये कोई बेंचमार्क होगा चेंज लाने में आपके एमएसएमई सेक्टर? आप किसी भी कंपनी को ले आइए, वो अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ पे आएगी, यहाँ की टाउन प्लानिंग करने नहीं आएगी। राइट। टाउन प्लानिंग, स्टेट की प्लानिंग आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ओके। वो अपना प्रोडक्ट बनाने आएगी, अपने प्लॉट को बनाएगी, अपनी फैक्ट्री को बनाएगी, अपनी फैक्ट्री चलाएगी। लेकिन अगर आपके अबाउट 80% एंटरप्रेन्योर्स अगर प्रेजेंटेबल नहीं होंगे, what will they conclude? They were not in a position to get the right source. Maybe otherwise they have to compromise. Sorry. This thing has to be, टाउन प्लानिंग तो अपने को ही करनी पड़ेगी ना। हमें कहाँ एरियाज बनाने हैं, कहाँ डेवलप करने हैं, कहाँ पे कितने लोगों को हम जगह दे सकते हैं, कहाँ पे हम कितनी पावर सप्लाई दे सकते हैं, रोड्स कहाँ पे कितनी चौड़ी हमें देनी चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमारी पूरी हो। उसके आसपास हम, जब आप इंडस्ट्रियल लैंड डेवलप करेंगे तो नेचुरल बात है आसपास रेजिडेंशियल भी डेवलप हो जाता है। तो स्टार्ट तो कीजिए। हम बना तो रहे रेजिडेंशियल, इंडस्ट्री है ही नहीं। तो जिसको नौकरी करनी है वो 40-20 किलोमीटर जाके क्यों रहेगा? जी। वो तो अपने ऑफिस के पास ही रहना चाहेगा। डेली कम्यूटर तो नहीं जाएगा इतनी दूर, अवॉइड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बनाइए। आप जाइए चाइना में, देखिए कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनी हुई है यहाँ पर। दूर दूर तक आपको लगेगा इंडस्ट्री खत्म ही नहीं हो रही है, और इतनी दूर तक है कि आप कार से भी अगर ट्रेवल करेंगे तो इट विल टेक अबाउट 25-30 मिनट्स टू क्रॉस दैट एरिया। इतनी दूर तक इंडस्ट्री, मतलब उन्होंने अपने मार्केट्स बनाई हुई है। इंडस्ट्रीज देखें तो इतनी दूर तक बनी हुई है कि आप कहेंगे इंडस्ट्री खत्म ही नहीं होती। इतने बड़े बड़े हब बने हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी कैपेसिटी उन्होंने इंस्टॉल कर रखी है। दे आर द ग्लोबल फैक्ट्री। क्या हम नहीं हो सकते? हम भी हो सकते हैं, लेकिन हमें उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, विच इज ओनली इन द वर्ड्स, ग्राउंड पे नहीं है। सर, आज के जो आपने पॉइंट्स डिस्कस किए सारे बहुत ही वैलिड पॉइंट्स थे। मैं समझता हूँ हमारे सारे ऑडियंस को एक नई दिशा मिली होगी, या सॉल्यूशन मिला होगा उनको, हर एक को सॉल्यूशन मिला होगा, क्योंकि एमएसएमईज की प्रॉब्लम्स सबकी कॉमन हैं। तो आज अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन समय हमें अलाउ नहीं कर रहा, तो आज का प्रोग्राम हम यहीं इजाजत लेना चाहेंगे। बाकी हमारे ऑडियंस से और भी अगर कोई सवाल हैं तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, तो जरूरत होगी तो हम डेफिनेटली एक और एपिसोड राजकुमार जी के साथ करेंगे। तो इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूं सर। नमस्कार। Thank you so much for joining us today. Tell us in the comment section how you liked our today's episode. Leave us comments about your questions, thoughts, and feedback.
Do catch us live next week on Thursday at 6 p.m. on YouTube and Facebook. For regular updates, stay connected with us and subscribe to our channels. See you next week.